سماج کے اندر بچہ نکل کے آ رہا ہے، بچہ پل کر کے آ رہا ہے، وہی جگہ جب سونی ہو چکی ہے تو سماج کو اچھا بچہ کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے، معاشرے کو اچھا آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوددار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء پیغمبر بھیج دیتا ہے، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، ارے وہی تو مکریا جالے کبوتر بھیج دیتا ہے، سبحان اللہ بھائی، جالے کبوتر بھیج دیتا ہے، اور کیا اسی کے دم سے ہے، اسی کے دم سے ہے یہ قائم روشنی کا نظام، اسی کے دم سے ہے یہ قائم روشنی کا نظام، جو بجھے چاند تو سورج نکال دیتا ہے، جو بجھے چاند تو سورج نکال دیتا ہے۔ اب آئیے میں ایسے مقرر شعلہ بیاں بے دھڑک کو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد شہنشاہ خطابت حضرت مولانا مفتی نذر الاسلام صاحب الظہیری مدھوبنی، مدرس مدرسہ نور العلوم عرفان نگر مریٹھا، اس شعر کے ساتھ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے، حضرت مولانا مائک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والرجل راع على اہل بیتہ وهو مسؤول عنہ والمرأة راعیة على بیت بعلها وولده وهي مسؤولة عنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر قابل قدر علماء کرام، معزز سامعین، پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بہت ساری دولتوں سے نوازا ہے، بے پناہ دولت، جس کی گنتی ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں اور اندازہ لگا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن آئیے ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر آتے ہیں اور اپنے محلے اور گاؤں کو ذرا دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے سماج میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، ہمارے محلے اور ہمارے علاقے میں دو طرح کے انسان زندگی گزارتے ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جس کے پاس بہت ساری دولتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، بے انتہا دولت، زندگی گزارنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، بینک بیلنس، کار کوٹھری، کھیت کھلیان، مکان دکان، زندگی میں جتنی ساری نعمتیں ہونی چاہیے اس انسان کے پاس اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اور سب کچھ ہے، زندگی بہت پرعیش کٹ رہی ہے اور گزر رہی ہے۔ لیکن اسی انسان کے پاس جس کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت دولت ہے اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، زندگی بالکل آرام کے ساتھ کٹ رہی ہے، لیکن وہی سماج اور علاقے اور محلے میں اگر اسی انسان کے پاس ایک نعمت نہیں ہے، اس کی جھولی میں ایک نعمت کی کمی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، صرف ایک نعمت نہیں دیا ہے، ایک نعمت سے محروم ہے، تو وہ آدمی اپنے آپ کو مکمل نہیں خیال کرتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مکمل نہیں ہوں، وہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ سب کچھ اس کے پاس ہے، اللہ نے ساری نعمتیں دے رکھی ہے، لیکن
लेकिन एक नेमत छीन रखी है, उस एक नेमत के नहीं होते हुए वो आदमी अपने आप को मुकम्मल नहीं समझता है। लेकिन उसी हमारे इलाके में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे देहात में और हर तरह के लोग में एक इंसान ऐसा भी है जिसके पास बहुत सारी दौलत नहीं है, बहुत सारी नेमतें नहीं है, बहुत सारे पैसे नहीं है, बहुत सारे कार कोठरी नहीं है, खेत खलियान नहीं है, मकान दुकान नहीं है, बस थोड़ी सी नेमत अल्लाह ने उसको दे रखी है। जिंदगी कट रही है, कमाने और खाने में कट रही है, लेकिन उस इंसान के पास अल्लाह ने एक नेमत दिया है तो वो आदमी अपने आप को मुकम्मल समझता है। वो आदमी समझता है कि मेरे पास सब कुछ है, वो आदमी समझता है कि मैं मुकम्मल हूँ, वो आदमी समझता है कि मैं पुर हूँ, वो आदमी समझता है कि मैं अपाहिज नहीं हूँ, वो आदमी अपनी जिंदगी में खुश है। मेरे मोहतरम, कलेजे पर हाथ रखिए और आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक इंसान है जिसके पास सब कुछ है, बस एक नेमत नहीं है तो वो मुकम्मल नहीं है, वो मुकम्मल नहीं समझता है। लेकिन जिसके पास बहुत कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन एक नेमत है तो वो आदमी अपने आप को मुकम्मल समझता है। इस पिंडाल के नीचे कलेजे पर हाथ रखिए और ये फैसला कीजिए, आपका दिल गवा देगा, और बताइए क्या वो एक नेमत, एक औलाद की नेमत है या नहीं है? एक औलाद की नेमत है या नहीं है? औलाद जिसके पास न हो, एक बेटा और एक बेटी, इतनी बड़ी नेमत और इतनी बड़ी दौलत है। अगर एक इंसान के पास है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे मोहतरम, जब औलाद इतनी बड़ी दौलत है, औलाद इतनी बड़ी नेमत है, औलाद इतनी बड़ी चीज है, तो भला बताइए क्या आज हम उस औलाद की सही तरबियत कर रहे हैं? आज हम उस औलाद की सही परवरिश कर रहे हैं? उसके तालीम का सही इंतजाम कर रहे हैं? मेरे मोहतरम, हमने इस औलाद को सही परवरिश का इंतजाम नहीं दिया, हमने इस औलाद को सही तरबियत नहीं दिया। जो फूल हमारी जिंदगी के सबसे कीमती सरमाया है, हमने उसको सही तरबियत का इंतजाम नहीं किया। और आज मैं इस वक्त पूरी जिम्मेदारी के साथ ये पैगाम आपके गांव को हवाले करने के लिए मैं तैयार हूं और मैं कह रहा हूं कि आज इस वक्त बच्चों के खराब होने में, बच्चों के बर्बाद होने में, बच्चों के बेज़मीर और बेहिस होने में, बच्चों के बदतमीज होने में और बच्चों के बर्बाद होने में, आज इस वक्त अगर सबसे बड़ा किसी ने रोल अदा किया है और अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है और अगर किसी ने सबसे बड़ा काम अंजाम दिया है तो वो एक माँ का किरदार है, वो एक बेटी का किरदार है, वो एक बहन का किरदार है, वो एक बीवी का किरदार है, वो एक बहू का किरदार है। क्यों कि आज माओ की जिंदगी में कुरान नहीं है, माओ की जिंदगी में हदीस नहीं है, माओ की जिंदगी में अच्छे और बुरे के पहचान नहीं है, माओ की जिंदगी में चोरी का माल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए ये सब नहीं है, माओ की जिंदगी में हलाल और हराम के पहचान नहीं है। यही वजह है कि आज माओ की गोद उजड़ गई है, माओ की गोद सोनी हो चुकी है। जहां से समाज को मटेरियल हासिल हो रहा है, जहां से समाज को पल करके बच्चा समाज के अंदर आ रहा है, जहां से बच्चा निकल करके, जिस छाती से बच्चा 2-2.5 साल दूध पीता है, जिस पेट में बच्चा 9 माह पलता है, खुदा की कसम वो गोद उजड़ गई है, वो गोद सोनी हो चुकी है। उन गोदों में कुछ भी नहीं है, वो गोद बिल्कुल खाली है, नमाज से खाली है, कुरान से खाली है, हदीस से खाली है, जायज और नाजायज के तमीज से खाली है, बड़ों के अदब और छोटों पर शफकत के एहतराम से खाली है, चोरी का माल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इन सब सारी चीजों से वो गोद उजड़ गई है, वो गोद सोनी हो चुकी है। आज जरूरत है इस बात की कि माओ को अपनी जिंदगी को दुरुस्त करने का, तब जाकर के समाज के अंदर, इसलिए कि जो मटेरियल निकलने की जगह है वहीं से मुआशरे और समाज के अंदर बच्चा निकल के आ रहा है, बच्चा पल करके आ रहा है। वही जगह जब सोनी हो चुकी है तो समाज को अच्छा बच्चा कभी भी नहीं मिल सकता है, मुआशरे को अच्छा बच्चा कभी भी नहीं मिल सकता है। ओ मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आइए उसी चिराग को जिसको आपने बुझा दिया है वही चिराग जलेगा तो इलाका रोशन होगा, मोहल्ला रोशन होगा। हम लोगों ने इस मंजर को नहीं देखा, हम लोगों ने आए दिन इस बात को नहीं सुना कि फलां साहब का पोता बर्बाद हो गया, फलां हाजी साहब का बेटा खराब हो गया, फलां का बेटा बदतमीज और बेहिस और बेकिरदार बन चुका। अरे फलां हाजी भी है, फलां नमाजी भी है, फलां 5 वक्त के नमाजी है, हज भी कई बार करके आए हैं, तब जाकर के फलां का बेटा और पोता कैसे बर्बाद हो जाता है। मेरे मोहतरम, गलती फलां की नहीं है, गलती दादे की नहीं है, गलती चचे की नहीं है, बल्कि गलती वहां हो रही है जहां से बच्चा समाज को निकल करके हासिल हो रहा है।
उस गोद में कुछ भी नहीं है। वो गोद बिल्कुल उजड़ गई है, वो गोद बिल्कुल सोनी हो चुकी है, वो गोद बिल्कुल खाली है। इसलिए ओ मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, वही चिराग जो तरबियत का, जो बरसों पहले माएँ दिया करती थी, वही चिराग जलेगा तो इलाका रोशन होगा, मोहल्ला रोशन होगा, समाज रोशन होगा, घर रोशन होगा, खानदान रोशन होंगे। वही चिराग को जलाने की जरूरत है। वही चिराग को जलाइए, वही सितारे को एक बार फिर से मुनव्वर कीजिए। और माँ अपनी आप को अगर दुरुस्त हो जाएंगी, अगर माँ अपनी जिंदगी को सही कर लेगी तो सारा निजाम दुरुस्त हो जाएगा, मोहल्ले का निजाम सही हो जाएगा। इसलिए आज इस वक्त जरूरत इस चीज की है। बस एक वाकया से मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। हमने कहा कि बस आज इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यह है कि माँ अपने आप को सही हो जाए। आज माओ की जिंदगी में कुरान और हदीस दाखिल हो जाए, माओ की जिंदगी में नमाज दाखिल हो जाए, माओ की जिंदगी में सारी चीजें दाखिल हो जाए तो समाज के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं, समाज में जो बच्चे पल रहे हैं, वो बच्चे खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। ओ मेरी माओ, बस एक वाकया से सबक हासिल कीजिए और यहाँ से जब उठे तो बस जिंदगी के उसी चिराग को जलाइए जो बरसों पहले हम बुझा चुके हैं। वही चिराग जलेगा तो घर रोशन होगा, इलाका रोशन होगा। वाकया बड़ा मशहूर ज़माना वाकया है, दिल्ली की सरजमीन का वाकया है। आपने भी दिल्ली को देखा, हमने भी देखा, लेकिन इससे पहले अगर आप दिल्ली देखें तो वहाँ के चलते फिरते लोगों को देखा होगा, वहाँ के बड़े बड़े चीज़ों को देखा होगा, वहाँ के भीड़ भड़के को देखा होगा, वहाँ के लगे मेले और ठेले को देखा होगा, वहाँ के जामा मस्जिद को देखा होगा, कुतुब मीनार को देखा होगा। आप भी कुतुब मीनार गए होंगे, वहाँ की बुलंदी को देखा होगा, वहाँ के मेले और ठेले को देखा होगा, लेकिन नहीं देखा होगा तो उसी कुतुब मीनार के नीचे लेटे हुए एक मर्द मुजाहिद के कब्र को नहीं देखा होगा, जिनको दुनिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़ई को सुन के अपनी जिंदगी को, सितारे को मुनव्वर कीजिए। वाक़या यूं है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा नहीं हुए थे, अपनी माँ के पेट में थे, तो उसके बाप ने अपनी बीवी से ये वसीयत की कि पेट से पैदा होने वाला बच्चा अगर लड़के की शक्ल में पैदा हो तो तुम इसको हाफिज कुरान बनाना। जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब पैदा हुए तो उनके वालिद फौत पा चुके थे। उसकी अम्मा के जहन में ये बात आई कि इसके अब्बा ने ये वसीयत करके गए थे कि पैदा होने वाले बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है। वो माँ अपने बेटे को दिल्ली की सरजमीन पर मदरसा तलाश करने के लिए निकल पड़ती है। एक मकतब में दाखिल होती है, इमाम साहब के करीब जाती है, इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब ये मेरा छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है। इसके अब्बा वसीयत करके गए थे। इमाम साहब ने उस लड़के को बैठाया और कहा कि पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो बच्चा पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह से जो शुरू किया तो 15 पारे हिफ्ज़ करके सुना डाला। इमाम साहब खड़े हो गए, गुस्से में आ गए और इमाम साहब ने कहा कि खातून तुम मुझे यहाँ ज़लील करने आई है, मेरा इम्तिहान लेने आई है, तुम्हारा ये बच्चा 15 पारे का हाफिज है और तुम मुझे कहती है कि इसको हाफिज बनाना है, तुम मजाक बना रही है। वो खातून रोने लगी। जब आंसू पर कब्जा पाया तो पर्दे के नीचे से उस खातून ने कहा कि इमाम साहब आज से इससे पहले ये मेरा लड़का कभी कोई मदरसा नहीं गया, कोई मकतब नहीं गया, बस मैं पहली मर्तबा आपके पास लेकर के आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसने 15 पारे का हिफ्ज़ कहाँ से किया है, मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि मैं 15 पारे का हाफिजा हूँ और जब तक ये बच्चा मेरे पेट में था दुनिया में मैं जब भी कोई काम किया करती थी कुरान पढ़ने के आलम में किया करती थी। जब ये बच्चा पैदा हो गया तो मैं कोई भी काम किया करती थी, खाना बनाती कुरान पढ़ती, झाड़ू लगाती कुरान पढ़ती, घर से के जो कुछ भी काम किया करती थी कुरान पढ़ने के आलम में किया करती थी। इमाम साहब हो सकता है वही नूर जो मेरे सीने के अंदर था अल्लाह ने इस बच्चे के अंदर मेरे पेट में मुंतकिल कर दिया।
امام صاحب ترک گئے. امام صاحب نے کہا کہ ہاں بس یہی بات ہے, وہی نور جو تیرے سینے میں تھا اللہ نے تمہارے پیٹ میں اس بچے کے اندر منتقل کر دیا. اس لیے میری ماں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. بس ایک پیغام آپ لوگوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں کہ اگر سماج کو اچھے بچے اسی وقت مل سکتے ہیں اور معاشرہ اچھا اسی وقت بن سکتا ہے جب مائیں اپنے آپ کو درست ہو جائے, جب مائیں اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کر لے, حدیث کو داخل کر لے, نماز کو داخل کر لے. چوری کا مال کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے, یہ سب اگر ماؤں کی زندگی میں داخل ہو جائیں گی تو سماج کے اندر پلنے والا بچہ, معاشرے میں آنے والا بچہ یہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے. بس ضرورت ہے ماؤں کو درست ہونے کی. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں, چینل کو سبسکرائب کریں, صدقہ جاریہ کی نیت سے.